Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Samina with lecture number 6, and in this lecture we complete our chapter Introduction to Computer. Let's start our lecture with recap. In the previous lecture, we complete 3 topics. The first topic is classification of computer according to size and capacity, and you know that according to size and capacity, computer can be classified into supercomputer, mainframe computer, mini computer, and microcomputer. The second topic which we cover in the previous lecture, that is impact of the computer on society, and impact of the computer on the society on the basis of education, on the basis of business. The third topic which we discussed in the previous chapter is internet and its society, and we discuss how the internet play the positive impact on the society and how the internet harmful for the society. Students, now we start our today's topic. Today we covered 3 topics. The first topic is programming language and its types. Second topic which we cover in this lecture, that is source program and the object program, and the last topic, that is language translator and its types. Okay student, start the discussion on the programming language. Programming languages mean the computer programming languages. Okay student, when you go to the market, you purchase the computer, and when you come to the home, it's just a hardware, it's just a physical component of the computer. It is not working until you put the software in the computer, you install the software into the computer. So where we get the software, how we get the software, how we make the software is a set of program, यानी सॉफ्टवेयर बहुत से प्रोग्राम्स को मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर बनता है. तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोग्राम. A program or a computer program is the step-by-step set of instructions which directs the computer to do the task you want and provide the result you want. So जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सी स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं. वो स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को डायरेक्ट करती हैं कि उनको उससे हमें क्या काम लेना है, और जब वो काम हम प्रोसेसिंग होता है तो हमारे पास एक रिज़ल्ट की फॉर्म में डेटा या इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. And to make a program you required programming languages. प्रोग्राम ऐसे ही नहीं बन जाते, बल्कि उसके लिए हमें डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है. So the programming languages is defined as a set of rules that provide way of telling computer what operation to perform. And we can say that it is the mean of communication between the user and computer. देखिए लैंग्वेजेस का अगर नॉर्मली हम देखें तो लैंग्वेजेस क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन. सेम लाइक दैट लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. जब हमें कंप्यूटर से काम लेना होता है तो हम कंप्यूटर यूज़र हम हैं, और कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो कंप्यूटर वो काम करता है. जिस तरह हर लैंग्वेजेस के कुछ रूल्स होते हैं, सेम लाइक दैट every programming languages has a set of rule, and according to follow that rule we can make a program. Students, now we see how many programming languages are there to make a program. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोग्राम्स बना सकते हैं. डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं और कौन सी लैंग्वेजेस किस प्रोग्राम्स के लिए सूटेबल है. So the programming languages are divided into 2 main categories. The first is low level languages and the second is high level languages. Low level language further divided into 2 types. The first one is machine language and the second one is assembly language. Now we discuss high level language and low level language. The first programming language is low level language in which we can make the program.
Low-level language is further divided into two types, that's a machine language and assembly language. First we discuss machine language. Machine language is the only programming language which can be understood by the computer without any translator. स्टूडेंट एज यू नो डैट कि आपकी जो अपनी लैंग्वेज है उसको समझने के लिए आपको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं जर्मनी चले जाते हैं तो आपको वहाँ जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? ट्रांसलेटर की. लेकिन अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप अपनी लैंग्वेज में दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं तो आपको उसके लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती. सेम लाइक डैट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर प्रोग्राम हम कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में बनाते हैं तो computer can easily understand it and it's not required any translator. What is computer language? Computer language is also called the binary language because it represents the data and program instruction as 0, off and 1s on. तो हम कंप्यूटर में जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं अगर वो मशीन लैंग्वेज में है तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन 0 and 1s. तमाम इंस्ट्रक्शन, इवन अगर हम एक ए लिखते हैं तो उसका भी अपना एक कोड है जो 0101 करके होगा. The next point is each machine language statement corresponds to one machine action. It's mean that कि जब हम कंप्यूटर में instructions देते हैं मशीन लैंग्वेज में, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो every statement have one machine action, यानी वो एक एक्शन में वो काम परफॉर्म हो जाता है. But same instructions require several instruction in another languages. Each computer has its own unique machine language. It's mean that कि अगर आपने एक प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में डिज़ाइन किया है तो वो उसी पर्टिकुलर मशीन कंप्यूटर पर ही चलेगा, किसी दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलेगा. बिकॉज एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स रजिस्टर्स एंड देयर कोड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर. Next point is programmer do not write program in machine language as it is difficult to write a program in it. It's a very interesting point. प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपना प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ना बनाएं बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. बिकॉज मशीन लैंग्वेज के एक एक इंस्ट्रक्शंस के कोड को याद करना, प्रोग्रामिंग करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सो द प्रोग्रामर यूजली अवॉइड टू मेक अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. Second type of low-level language is assembly language. Actually, assembly language is between machine language and high-level language. Machine language is a pure binary language. It means that all the programming has been done in binary language, which is 0 and 1. And whenever we doing the programming in the high-level language, it is depend on English language word which we use in our common life. But assembly language is between them. It has some symbolic code and it has some machine code. So in assembly language the statements are written in symbolic code termed as mnemonic codes. What is mnemonic code? Mnemonic is a symbolic name for a single executable machine language instruction. And there is at least one mnemonic defined for each machine language instruction. It's mean that if you use imp, it means you get the information from some input device. If you use word out, it means you put information to some output devices. So every assembly language have some mnemonic code. Here I give you the some mnemonic codes. These mnemonic codes are widely used in computer programming and communication system operation to specify the instruction. So इन mnemonic codes को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्रामिंग को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं. तो जो प्रोग्रामर्स असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो इन निमोनिक कोड्स की वजह से उनको प्रोग्रामिंग में आसानी के साथ वो कर सकते हैं और वो दे कैन मेक अ प्रोग्राम ईजियर देन द मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ असेंबली लैंग्वेज दैट just like machine language,
every computer has its own assembly language. It's mean that अगर आपने assembly language में प्रोग्राम बनाया है तो जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आपने वो प्रोग्रामिंग की है that program run on that specific कंप्यूटर. ये हर कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन नहीं होगा. जिस कंप्यूटर पर आपने वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, प्रिपेयर किया है इन असेंबली लैंग्वेज, दैट्स कंप्यूटर रन दैट प्रोग्राम. ओके, व्हाई वी मेक अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज. मैंने अभी आपसे बताया कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आपको पूरे कोड्स याद करने पड़ते हैं. सो द मेन रीज़न फॉर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ इट्स इफ़िशियंसी, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज. चूँकि असेंबली लैंग्वेज में हम डिफरेंट मशीन कोड, निमोनिक कोड, डिफरेंट सिंबॉलिक कोड यूज़ करते हैं, तो प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करता है असेंबली लैंग्वेज में देन इट इज़ नियर टू द मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इसमें मशीन कोड यूज़ हो रहे. तो जो लैंग्वेज कम ट्रांसलेट होगी, ट्रांसलेटर कम यूज़ होगा उसमें, तो वो ज़्यादा इफ़िशेंटली काम करेगी एंड इट वर्क मोर फास्टर देन द अदर लैंग्वेजेस. So we can say that an assembly language program produce faster and shorter machine language program, which may be easier to read and write than the machine language. So जब प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाता है तो उसके कोड्स भी कम होते हैं और एक बहुत लेंदी प्रोग्राम नहीं होता, बट इट इज़ अ शॉर्टर मशीन प्रोग्राम. और इसमें प्रोग्रामिंग करना मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में लिटिल बिट आसान होता है और उसकी इफ़िशेंसी भी ज़्यादा होती है एंड इट रन मोर फास्टर देन द हाई लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट वन इज़ ड्यू टू डिफ़िकल्ट सिंटैक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र. हमने अभी कहा कि ये ये मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में ईजियर है, बट स्टिल वी कंसीडर टू मेक अ प्रोग्राम डिफ़िकल्ट इन द असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि इसमें भी आपको कहीं ना कहीं सिंटेक्स, निमोनिक कोड और ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती हैं. आप उसको जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपको इन तमाम कोड्स को याद करना होता है, कहाँ पर किस जगह पर कौन सी प्रोग्रामिंग में क्या कोड यूज़ हो रहा है, कहाँ मशीन कोड यूज़ हो रहा है, कहाँ पर सिम्बॉलिक यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर हम निमोनिक कोड यूज़ कर रहे हैं. तो वी कैन से दैट मेकिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द user. The second type of computer language is high level language. The high level language uses complete word taken from the English language, so it is really, easier to learn than the low level language, and it is also easy for programmer to make a program in high level language. Point number one, the high level language are closer to the human language than the low level language, because it uses English word like go to, input, run and etc. देखिए, जब हम ऐसी लैंग्वेज पे काम करते हैं जिसमें हम वो वर्ड यूज़ करते हैं जो हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली बहुत से इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और एक आम आदमी को भी उस वर्ड का मतलब पता होता है. तो अगर हम वो वर्ड एज ए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. तो जब हम इन कॉमन वर्ड को यानी ह्यूमन लैंग्वेज के तौर पर ह्यूमन लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं वो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग करने में आसानी होगी और हमें कोई कोड्स, मशीन कोड, सिंबॉलिक कोड या मेमोनिक कोड्स को लर्न भी नहीं करना पड़ेगा. जैसे कि गो टू इज़ यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब हम कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में गो टू का वर्ड यूज़ करते हैं तो इट्स मीन यू जंप from one instruction to another instruction. If you want to give the data to the computer, then you use the word input. Input mean to feed the data into the computer. तो ये वो वर्ड है जो हम आम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो हम इसे एज ए प्रोग्रामिंग में जब यूज़ करते हैं तो दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज. High level language do not have to be written for a particular computer, and it can be executed on any machine that has a compiler for that language. मैंने पिछली दोनों लैंग्वेजेस में आपको बताया था कि जिस कंप्यूटर पर हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पर रन होगा. बट इन द केस ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज it is not necessary
you have to make a program in the particular computer, you can run the program इन ऑन एनी कंप्यूटर. तो आप किसी भी कंप्यूटर पर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और इसमें आपको कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते. Next one is execution of program in high level language is slow because it requires translator to convert source program into object program. स्टूडेंट, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये यूज़र के लिए, प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान है कि उसमें प्रोग्रामिंग करें, बिकॉज इन हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर इन ह्यूमन लैंग्वेज और इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट इट रिक्वायर्स ट्रांसलेटर. इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, ये हमारे लिए तो आसानी होती है प्रोग्रामिंग करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर के लिए डिफ़िकल्ट होती है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली binary language or machine language. So when the programmer make a program in high level language, it must be translated into the machine language with the help of translator. तो क्या होता है, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनता है, दैट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, एंड व्हेन द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, देन वी कॉल इट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. तो इस तरह जब प्रोग्राम एक बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेट होगा, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, machine language again convert into high level language for the output. तो programming, execution of program is slow. These languages are designed to solve particular problem. For example, COBOL language is designed for business programming purpose, while Fortran is designed for the scientific programming purpose. Different types of high level languages are available in the market. You can purchase it for your particular प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो यू कैन यूज़ द कोबोल, और अगर आपको कोई साइंटिफिक रिलेटेड, कोई साइंस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो देन यू कैन यूज़ द फोर्ट्रन. तो हर आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की हाई लेवल लैंग्वेजेस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं. इन नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद हैं और जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्रामिंग को आसानी से कर सकते हैं और हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं. Here are some high level language which are easily available in the market, and you can make a program in that particular high level language. The first one is Fortran. Fortran mean formula translation. FOR formula, TRAN for translation, formula translation. It was developed in 1957 for IBM computer to solve mathematical, scientific and engineering problem. Fortran असल में डिज़ाइन की गई थी IBM कंप्यूटर्स के लिए, ताकि वो वहाँ जितनी भी मैथमेटिकल, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए फोर्ट्रन को डिज़ाइन किया गया था. इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. इसमें प्रोग्रामिंग मॉड्यूल की फॉर्म में होती थी, यानी ऑल द स्टेप्स आर डिफाइन इन मॉड्यूलर फॉर्म. यानी फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें एक स्टेप को फॉलो किया जाता था, सेकंड मॉड्यूल जिसमें सेकंड स्टेप को फॉलो किया जाता था. तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग थी जिसमें मॉड्यूल वाइज प्रोग्रामिंग की जाती थी. इट हैज़ बीन रिवाइज सो मेनी टाइम, यानी इसके साथ वो टाइम टू टाइम इसमें बहुत सी चेंजिंग होती रही अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द यूज़र. जो यूज़र की नीड्स की उसके हिसाब से इसको रिवाइज करते गए, बहुत दफ़ा इसको रिवाइज किया गया. सेकेंड वन इज़ कोबोल, CO कॉमन, B बिजनेस, O oriented, L लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स ये बहुत पुरानी, सबसे पहले जैसे कहना चाहिए जो डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस जब डिज़ाइन की गई तो इसमें कोबोल जो थी वो अर्लीस्ट वन थी. It was developed in 1959 by a group of computer professionals. Since 1959, it has been undergone several modification and improvement. सबसे पहले इसे 1959 में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने इसको डिज़ाइन किया था, लेकिन 1959 में इसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट की गई. कोबोल इज़ आइडियली सूटेड फॉर द सोल्यूशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम. जैसे कि नाम में है, इट्स अ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो ज़्यादातर इसे वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ डिफरेंट बिजनेस
रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी वांटेड टू कीप द ट्रैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एनुअल वेजेस, कोबोल वुड बी एन आइडियल लैंग्वेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. सो कंपनीज, जहाँ कोई भी कंपनी होगी वहाँ सैलरी से रिलेटेड, इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड, या एम्प्लॉय के जो एनुअल वेजेस हैं उनको उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए कोबोल यूज़ होती है. The next one is basic, beginner, all-purpose symbolic instruction code. Student, you all familiar this language because in the previous class you have done the programming in basic, and inshallah in 9th class your all practicals are also based on basic, beginner, all-purpose symbolic instruction code language. Okay, first we see who designed this language. John Kemeny and Thomas Cruz developed BASIC in 1964 for beginners. This language is specially designed for the that person which are interested in the programming. और जब प्रोग्रामिंग को बच्चों को या स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है तो सबसे पहले उसको उनको काम बेसिक में करवाया जाता है because it's a easiest one and specially designed for the beginner. Basic is very simple language and to use and understand. It uses a simple English word. Basic specially डिज़ाइन फॉर बिगनर्स. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं दैट्स ऑल आर बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड. दैट्स वाई वी कॉल दैट बेसिक इज़ इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज. इट्स अ वेरी सिंपल language and easily understandable. Even person with a little knowledge of computer programming can learn it and utilize it for the business and a scientific purpose. बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती इस लैंग्वेज को करने के लिए, इसीलिए इसे बिगनर्स की लैंग्वेज कहा जाता है. वो बंदा जिसको थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग की नो हाउ है वो इसके अंदर ईजिली प्रोग्रामिंग कर सकता है. इट इज़ पावरफुल लैंग्वेज दैट हैज़ ग्रैब्स मिलियंस ऑफ यूज़र्स. सो चूँकि ये इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान है और बहुत आसानी से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे यूज़र्स की पसंदीदा लैंग्वेज भी है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इट इज़ दैट it has no standard version and different manufacturer modify it into different version. सिर्फ प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपको इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन आपके पास मौजूद नहीं है. बेसिक, क्यू बेसिक, विजुअल बेसिक, डिफरेंट बेसिक के वर्जन है जिनको डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपने उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है. The next programming language is Pascal. A French mathematician Blaise Pascal introduced programming language by the name of Pascal. आपने पास्कल का नाम पहले भी सुना होगा. पेस्कलेन उसकी डिवाइस थी और उसने एक लैंग्वेज भी इन्वेंट की थी डेट इज़ कॉल्ड पास्कल. It is highly structured programming language. What is a structured programming language? Structured programming language means the programs are divided into small program called function. यानी एक पूरा प्रोग्राम नहीं होता, प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया जाता है और उसको हर प्रोग्राम एक फंक्शन के लिहाज से काम करता है और हर फंक्शन में एक प्रोसीजर मौजूद होता है जिसके अंदर हम डाटा को इनपुट भी करते हैं, डाटा को प्रोसेस भी करते हैं. It was developed in 1970 after the concept of structure प्रोग्रामिंग. तो जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया था तो उसको उस वक्त इसे इन्वेंट किया गया था और इसमें चेंजिंग की गई थी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज एंड सो मेनी प्रोग्राम विच आर यूज आर मेड इन सी लैंग्वेज. C is a general purpose computer programming language developed between 1969 and 1973 by a Danish researchers at the Bell Telephone Laboratories. C एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और इसे सबसे पहले बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्रीज ने डिज़ाइन किया था. C was designed for implementing system software and used for developing portable application software. C में स्पेशली वो प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं बिकॉज इसमें प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर पे की जाती है. और इसमें ज़्यादातर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कि गेम से रिलेटेड होते हैं जिसमें स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
C is one of the most widely used programming language of all the time, and there are very few computer architectures for which a C compiler does not exist. जैसे मैंने शुरू में कहा कि सी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, तो प्रोग्रामर अक्सर जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादातर अपनी प्रोग्रामिंग जो करें वो सी लैंग्वेज में करें, बिकॉज इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव और वेरी बेस्ट लैंग्वेज we can say that to making a programming. Now the next term which we commonly use in our computer, और जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम उसमें बार बार सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का जिक्र ज़रूर करते हैं. तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सोर्स प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और यहाँ पर हम एक कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे एक सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. The first point of source program is that source program is a program written by a programmer. प्रोग्रामर जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है आइदर इन अ हाई लेवल लो लेवल में, तो वो प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है. एंड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज जनरेटेड बाय द ट्रांसलेटर यूजिंग वन और मोर सोर्स फाइल्स एज इनपुट. ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है कि सोर्स प्रोग्राम को जब ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज में क्यों ट्रांसलेट किया जाता है? बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. इट कैन ओनली प्रोसेस दैट डाटा विच इज़ इन अ मशीन लैंग्वेज. तो प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम जो होगा वो प्रोग्रामर हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन करेगा, लेकिन कंप्यूटर इसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में. तो वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ होगा, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. द पॉइंट नंबर 2, द सोर्स प्रोग्राम्स आर रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज असेंबली, बेसिक और सी, सो दे आर इजीली रीडेबल बाय ह्यूमन. मैंने अभी कहा कि सोर्स प्रोग्राम हमेशा प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज में बनाएगा या हाई लेवल में लैंग्वेज में बनाएगा, जिसमें बेसिक भी हो सकती है, सी भी हो सकती है. हमने बहुत सी लैंग्वेजेस अभी मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज बताई. दे ऑल आर इजीली रीडेबल बाय ह्यूमन. सो वो प्रोग्राम जो कि प्रोग्रामर बनाएगा दैट इज़ कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यूजली कंटेन बाइनरी लैंग्वेज और मशीन कोड, सो दे आर नॉट ह्यूमन रीडेबल. ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बिकॉज ट्रांसलेट होगा मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में, तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि जो ह्यूमन अगर उसकी ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल को देखेंगे तो उसमें हम उसको रीड नहीं कर सकेंगे कि जो कुछ हमने लिखा है क्या उसके कोड हमें पता चले. नो, इट्स इन अ मशीन लैंग्वेज. थर्ड पॉइंट, अ सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली ऑन अ मशीन, इट रिक्वायर ट्रांसलेटर. ऐसा नहीं हो सकता कि सोर्स प्रोग्राम को विदाउट किसी ट्रांसलेटर के हम उसको किसी भी कंप्यूटर पर रन कर सके या उसको हम उसका आउटपुट ले सके. ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ यूजली अ मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो जब हम सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं तो ये ट्रांसलेट होता है, जैसे मैंने अभी कहा, जब ट्रांसलेट होगा तो जो फाइल बनेगी दैट फाइल इज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी इसको एग्जी फाइल करेंगे, वो किसी भी कंप्यूटर पर इजीली रन होगा, और इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं. स्टूडेंट, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डिफाइन करते हुए मैंने बार बार एक वर्ड यूज़ किया है, डेट इज़ ट्रांसलेटर. व्हाट इज़ अ ट्रांसलेटर? अगर हम इंग्लिश में देखें तो ट्रांसलेटर मीन टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. So the language translator which is used for high level, low level is called language translator. Why we need to language translator? हमें कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत क्यों है? Computer can understand only the program which is written in machine language, but we write a program in high level language or assembly language. So there is need of a translator which convert high level language program or assembly language program into machine language for processing. मैंने आपसे पहले कहा कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम जब प्रोग्रामर जब कंप्यूटर में प्रोग्राम डिज़ाइन करता है तो वो अपनी ईजीनेस के हिसाब से या उसको जिसमें आसानी से वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, तो वो अक्सर हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है.
So when they design the program in assembly and high level language, then these languages required a translator, so that the program written in high level language or low level language, it must be translated into machine language for processing, so you can get the output. तो इसलिए कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है. सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड में या ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में, तो हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की. The definition of language translator is that the program which is used to translate source program. Remember, source program written in high level or assembly language into object program यानी machine language is called a translator. So the वो program जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में इज कॉल्ड ट्रांसलेटर. There are three type of translator which are used for high level language or low level language. That's are compiler, interpreter and assembler. Now we discuss all the three translator one by one. The first translator which we discuss, that is compiler. Compiler is a program which translate high level language program into machine language. Student, remember, all the translator are used to translate. लेकिन किस लैंग्वेज के लिए कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हम वो डिस्कस कर रहे हैं. तो कंपाइलर का टास्क क्या है? इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. It translate whole program into machine language at once and give list of the error in the program. अगर हमने प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन किया है और हम उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो तब वो पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करेगा. और अगर आपने प्रोग्रामिंग करते हुए मिस्टेक्स की होंगी या प्रोग्रामिंग में आपने सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया होगा, तो देयर आर सम एरर्स. तो जब आप कंपाइलर यूज़ करेंगे तो कंपाइलर उसको जब ट्रांसलेट करेगा, तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग में एरर्स होंगी तो वो प्रोग्राम की टोटल एरर्स को एक लिस्ट की फॉर्म में आपके पास शो करेगा कि आप अपने प्रोग्रामिंग में इन एरर्स को रिमूव करें. देन दे मेक अ एग्जीक्यूटेबल फाइल और ऑब्जेक्ट कोड. The compiler make a separate object file of translated program. तो जब वो लिस्ट ऑफ एरर देगा, तो जो वो फाइल बनाएगा वो फाइल एक सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल होगी जिसमें एरर्स की एक लिस्ट मौजूद होगी. जब एरर रिमूव करेंगे तो वो एरर रिमूव होने के बाद एक ट्रांसलेटेड प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी. कंपाइलर इज़ फास्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिकॉज compiler compile whole program at once, so it's a fastest in execution. डिफरेंट टाइप्स की हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर मौजूद हैं. फर्स्ट आई हैव डिस्कस कंपाइलर एंड द सेकंड वन इज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. इंटरप्रेटर perform the same task which performed by the compiler, that it translate high level language program into machine language. What is the difference between compiler and interpreter? क्योंकि compiler भी high level languages के लिए यूज़ होता है और interpreter भी high level languages के लिए यूज़ होता है. तो क्या ऐसे क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि एक हाई लेवल लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए हम कंपाइलर भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरप्रेटर भी यूज़ कर रहे हैं. हियर इज़ द दैट डिफरेंस. इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम एवरी टाइम यू एग्जीक्यूट बिकॉज इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. कंपाइलर में होल प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है. ट्रांसलेट होने के बाद इट गिव द एरर लिस्ट. लेकिन इंटरप्रेटर, जैसे नाम से है इंटरप्रेटर, यानी वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है और अगर उसमें एरर नहीं होती देन इट जंप टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो इस तरह वो लाइन बाय लाइन या इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट करता है. रिमेंबर, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. तो हमारे पास मुख्तलिफ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम कहीं पर कंपाइलर यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पर इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे होते हैं, डिपेंड ऑन द लैंग्वेज.
तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एंड द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. इट डज नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट फाइल लाइक कंपाइलर. चूँकि कंपाइलर तमाम प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है तो इसलिए वहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल बनती है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जा रहा है. जहाँ ट्रांसलेशन एरर आई, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो वहीं स्टॉप हो जाती है, और जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करते इट विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती है. इट इज़ अ स्लोएस्ट इन एग्जीक्यूशन बिकॉज इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एंड आफ्टर रिमूविंग द एरर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द बिगनिंग. तो ये स्लोएस्ट है कंपाइलर के मुकाबले में, क्योंकि कंपाइलर एक साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो इसलिए वो उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होगी. लेकिन जिन हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा होगा उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होगी. क्यों होगी स्लो? बिकॉज इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, और जब आप उस इंस्ट्रक्शन की एरर्स को रिमूव करेंगे देन आपका प्रोग्राम वहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा ट्रांसलेट होना. इट अगेन ट्रांसलेट फ्रॉम द बिगनिंग. फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम 2000 लाइन्स का है और आपके पास एरर आती है 1000 लाइन नंबर पर. तो अब क्या होगा? जब आप उस एरर को रिमूव करेंगे 1000 लाइन नंबर पे तो ये 1001 से स्टार्ट नहीं होगा. इट स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 1. दैट्स वाई the execution of interpreter is slower than the compiler. अभी मैंने आपसे कहा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ ट्रांसलेटर्स आर यूज फॉर हाई लेवल लैंग्वेज. लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेज में करते हैं तो उसको भी ट्रांसलेट करना पड़ता है टू मशीन लैंग्वेज. सो द assembler is a translator which are used to translate low level language. ठीक है, लो लेवल जितनी भी लो लेवल लैंग्वेजेस होंगी उनके ट्रांसलेटर को क्या है? असेंबलर. जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उनके ट्रांसलेटर क्या है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. Assembler is a program that convert assembly language program into machine language. As you know that student, assembly language is a language which are used for making a program. तो जब वो चूँकि लो लेवल लैंग्वेज है और वो उसमें डिफरेंट सिंबॉलिक कोड भी यूज़ हो रहे हैं, मशीन कोड भी यूज़ हो रहे हैं, तो वो कंप्लीट मशीन लैंग्वेज नहीं है. तो उसको भी ट्रांसलेट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी. और असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर क्या है? असेंबलर. असेंबली लैंग्वेज facilitate programmers to write a program easily but still it need to convert in the machine language. जब आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं तो इट इज़ ईजियर देन द मशीन लैंग्वेज टू मेक अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज. लेकिन यहाँ पर भी आपको नीड है कि आप उसको कन्वर्ट करें मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर्स को प्रोसेसिंग कर सकें. It also make an object file on the disk and also allocate area of the main storage. Assembler also make an object file. जैसे कि मैंने आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर अभी एक्सप्लेन किया है, तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल बन रही है? कंपाइलर में. तो जब कंपाइलर में ऑब्जेक्ट फाइल बन रही है जिसका मतलब है कि होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो इट्स मीन असेंबलर ऑल्सो ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एंड देन गिव द एरर लिस्ट. लेकिन इसमें एक मेन स्टोरेज का एक एरिया भी एलोकेट कर देता है जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट फाइल को एलोकेट करता है. द असेंबलर इज़ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है. Okay students, review of today's lecture. Today we complete our first chapter, that is introduction of the computer, और उसमें हमने लास्ट के 3 टॉपिक हमने कवर किए हैं. फर्स्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. In programming language we discuss 2 main language, that is low level and high level language. Low level language is further divided into 2 types, that are machine language and assembly language. Second topic which we discuss in this lecture, that is source program and object program. And the third one is language translator. There are 3 language translator which we have discussed, that are compiler, interpreter and assembler.
Now, assignment of lecture number 6. In this assignment, you will write the differences: high level language and low level language, interpreter and compiler, source program and object program. आपने to make you have make टू कॉलम और जिसमें आप कंपेयर करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज से, इसी तरह इंटरप्रेटर को कंपाइलर से, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से. Hope student you all understand the lecture very well, and inshallah we will see you in the next lecture. Allah Hafiz student.